کہ ADCR چنیوٹ محمد عمر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محکمہ SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈیپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ احمد علی کو ADCR چنیوٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ADCR چنیوٹ محمد عمر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کو SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ احمد علی کو ADCR چنیوٹ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کا متعلقہ نوٹیفیکیشن محکمہ SNGAD نے جاری کر دیا ہے، جبکہ یہ نوٹیفیکیشن محکمہ SNGAD کے سیکشن سروسز 1 نے جاری کیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اشرف جمیل خان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ جبکہ بتاتا چلوں تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے حکم نامے کے بعد جاری کیا گیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر نگرانی جاری کیا گیا ہے، جبکہ ADCR چنیوٹ محمد عمر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ڈپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ احمد علی کو ADCR چنیوٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ LDA کی تاریخ میں 50 سال بعد میڈیکل پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ افسران اور ملازمین اب لامحدود دوائیاں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پالیسی کے تحت افسر اور ملازم کے لیے فی ماہ 25,000 روپے کی دوائیاں مقرر۔ ملازم کی فیملی کے لیے بھی 25,000 روپے کی دوائیاں دستیاب ہوں گی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ یہ LDA کی تاریخ میں 50 سال بعد میڈیکل پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ افسران اور ملازمین اب لامحدود دوائیاں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پالیسی کے تحت افسر اور ملازم کے لیے فی ماہ 25,000 روپے کی دوائیوں کی جو حد ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ ملازم کی فیملی کے لیے بھی 25,000 روپے کی ادویات دستیاب ہوں گی۔ 25,000 سے زائد مالیت کی دوائیاں خریدنے کی جو منظوری ہے وہ ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹی سے لینا ہوگی۔ اس سلسلے میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹرز، ڈائریکٹر فائنانس، ڈائریکٹر C&I، اس کے علاوہ جو میڈیکل آفیسر ہے وہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کسی بھی مریض کو 25,000 سے زائد دوائی کی اجازت کمیٹی دے گی یا مسترد کرے گی۔ کمیٹی سے اجازت لینے کے لیے باضابطہ درخواست دینا لازم ہوگی۔ پہلے افسران اور ملازمین ہر قسم کا جو میڈیکل خرچ ہے وہ LDA سے وصول کرتے تھے۔ ماضی میں افسران اور اہلکار دواؤں کا لامحدود خرچ LDA سے لیتے رہے ہیں، اور اسی بنا پر یہ نئی پالیسی لائی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اب سرکاری خرچ پر لامحدود دوائیاں نہیں خریدی جا سکیں گی۔ افسران یا اہلکاروں کو زائد رقم کی ادویات کی خریداری کے لیے سرکاری خرچے سے قبل میڈیکل جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے اجازت لینا لازم ہوگی۔ جی زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ LDA کی تاریخ میں 50 سال بعد میڈیکل پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ افسران اور ملازمین اب لامحدود دوائیاں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پالیسی کے تحت افسر اور ملازم کے لیے فی ماہ 25,000 روپے کی دوائیاں مقرر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے باعث پنجاب میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ صوبے بھر میں ابھی تک 3200 سے زائد موضوع جات متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ دریا ستلج، راوی اور چناب کی طرف سے برپا کی جانے والی تباہی کی داستانوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی نقصانات کا مکمل تخمینہ لگایا جانا باقی ہے۔ اس حوالے سے پیر احمد کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 26 اگست سے اب تک پنجاب میں سیلاب اور اس کے باعث پیش آنے والے حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41 ہو چکی ہے۔ دیگر نقصانات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث 3200 سے زائد موضوع جات متاثر ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 24,52,000 لوگ متاثر ہوئے۔ اس دوران سیلاب میں پھنس جانے والے 9,99,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ شدید سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 395 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے۔ مویشیوں کے لیے بھی 336 ویٹرنری کیمپ قائم کیے گئے۔ ریلیف کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہر سطح پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ DGPDMA نے راوی میں سدھنائی اور چناب میں ہیڈ محمد والا پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عرفان علی کاٹیا کہتے ہیں دریائے ستلج میں بھارت سے مزید پانی آنے کے لیے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ آبادی کو بچانا پہلی ترجیح ہے، اس کے لیے بعض جگہ پر بند توڑنے پڑیں گے۔ دیکھیے زاہد عابد کی رپورٹ۔
सैलाब और दरियाओं में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे DG प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने बताया कि सतलुज हरी के मकाम पर अभी ऊंचा सैलाब रहेगा। भारत के डैम 100% भर चुके हैं, वहां से मजीद पानी आएगा, जबकि चनाब का रेला हेड तरीमू से रात गए मुल्तान पहुंचेगा। हेड सदनाई से 1,17,000 क्यूसिक पानी चल रहा है, जो 1.5 लाख क्यूसिक फुट तक पहुंचने का खतरा है। हेड सदनाई के मकाम पर बंद तोड़ा तो पीर महल और खानेवाल के मौसाजात मुतासिर होंगे। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान पर भी ऊंचे सैलाब का खतरा है। 5 सितंबर तक पंजनंद के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक पानी पहुंचेगा और तमाम पानी 6 और 7 की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। चनाब का पानी का रेला था, वो कल आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसको पर्सनली खुद विटनेस किया। वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। इरफान अली काठिया ने मजीद कहा कि अब तक 3,243 मौसाजात और 24 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं। 10 लाख लोगों का अब तक बहिफाजत इनखला कर चुके हैं। जंग सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ मुल्तान और खानेवाल से मजीद इनखला करना होगा। अब तक की अगर मैं इवैक्यूएशंस की बात करूं तो तकरीबन 10 लाख लोग इस वक्त मुख्तलिफ तरीक़ों से एवैक्यूएट किए जा चुके हैं। जंग अभी तक का सबसे ज़्यादा जो पानी का फैलाव है और सबसे ज़्यादा जो इनंडेशन है अब तक की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो दरियाई पानी से वो सबसे ज़्यादा जंग में हुई। DGPDMA का मजीद कहना था कि पंजाब में सैलाब से 41 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हुकूमत पंजाब पुरज़्म है कि सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। मुल्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी। अली अमीन गंडापुर के काला बाग डैम बनाने के बाद पर पहली बार उनसे मुत्तफिक हूँ। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी कहती हैं इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। मुल्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी। अब सैलाब यहाँ से सिंध जा रहा है, अब सिंध के अंदर भी इफेक्ट करेगा तो हमें उतनी तकलीफ है जितनी पंजाब के लोगों के लिए तकलीफ है। सो हमें सब सूबों को, मैंने जैसे पहले कहा कि बैठकर जो है इसके ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि एक तरफ अवाम सैलाब की तबाहकारियों से मुश्किलात का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ एक मखलूक में खौफे खुदा है, ना पाकिस्तानियत है, जो सैलाब पर प्रोपेगेंडा करके अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा, एक फजूल किस्म की बातें और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के मशवरे के बगैर भी मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं। कच्चे के डाकुओं समेत हर एक की जिंदगी अहम है, वो बाहर आएं और सरेंडर करें, तमाम सहूलियात मिलेंगी। कैमरामैन अदनान हसन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान रोड, उमर चौक, शानभट्टी रोड पर 7 डेयरी शॉप, सप्लायर और केचप सॉसेज यूनिट की चेकिंग। 3 मुकदमात दर्ज, 3 डेयरी शॉप्स, 1 केचप यूनिट बंद, 2 को भारी जुर्माने किए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा है कि 16,500 लीटर मिलावटी दूध और 2,000 किलो केचप, मायोनीज, 1 मन से ज़ायद केमिकल भी तलब किया गया है। 2 मिल्क शॉप्स और सप्लायर के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। तलब करदा केचप और मायोनीज मुकर्रर मयार के मुताबिक ना थी। नाकिस मिलावटी दूध और सॉसेस का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों को मुतासिर कर सकता है। शहरी अशाया खुरनोश की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एजाज चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी ने अपने वकील राना मुदस्सिर उमर और बैरिस्टर तैमूर मलिक की वसातत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर एजाज चौधरी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल किया। एजाज चौधरी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रेफरेंस भेजे बगैर ECP का नाअहली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए।
NH-66 वजीराबाद में ज़िमनी इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वसूल न करने के खिलाफ एक ही नोयत की दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने शहरी मोहम्मद खालिद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें कागजात नामजदगी वसूल करने के इकदाम को चैलेंज किया गया है। अदालत ने हिदायत की कि इस नोयत की दरख्वास्तें यकजा करके 3 सितंबर के लिए मुकर्रर की जाएँ। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी अरशद भट्टी ने निशानदही की कि कानून हर शहरी को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देता है। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी वसूल न करके कानून की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त गुजार के कागजात नामजदगी वसूल करने का हुक्म दिया जाए। कान्हा के इलाके से 6 साल कबल अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने अदम बाजियाबी पर CCPO बिलाल सदीक अमियाना को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक उसकी बेटी को जिन्नात ले गए हैं। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। मगवी खातून की बाजियाबी का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मगवी फौजिया बीबी के अदम दस्तयाबी केस की समाअत की। SP CCD आफ्ताब फुलरवान और दरख्वास्त गुजार के वकील नासिर अब्बास पंजोता अदालत में पेश हुए। वकील ने बताया कि 6 साल से जायद अरसे से खातून गायब है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार की बेटी की उम्र कितनी थी। वकील ने बताया कि उसकी उम्र 29 साल थी, एक बेटा भी है। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक उसकी बेटी को जिन्नात ले गए, पुलिस ने बाजियाब नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या इसे कोई मसला था, वो घर से कैसे गायब हुई। वकील ने बताया कि उसका घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक जिन्नात वगैरह ने गायब कर दी है। मगवी खातून का बच्चा नानी के पास है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या इस बच्चे को जिन्नात लेकर नहीं गए। जस्टिस आलिया नीलम ने CCPO को मगवी बाजियाब करके पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने बेटी फौजिया के अगवा का मुकदमा 25 मई 2019 को थाना कान्हा में दर्ज कराया। मुकदमा फौजिया के शोहर और सास के खिलाफ दर्ज किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की पुलिस हिरासत से बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। मुलजिम वकास अहमद के वालिदा अल्लाह वसाई ने बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राजा गजनफर अली खान ने बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि मुलजिम वकास डकैती के मुकदमात में जमानत पर है। मुलजिम को CCD टोबा 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने दरख्वास्त गुजार के बेटे को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस दरख्वास्त गुजार की बेटे से मुलाकात भी नहीं करवा रही। खदशा है कि पुलिस उसे जाली मुकाबले में हलाक कर देगी। अदालत पुलिस को दरख्वास्त गुजार के बेटे को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे। पुलिस ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि दरख्वास्त गुजार का बेटा 30 अगस्त 2025 को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में बाजियाबी दरख्वास्त निपटा दी। जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेरशाह दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने सरकारी वकील को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ATC जज मंजर अली गिल बानी PTI के भांजे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रोज शेरशाह के वकला और वालिद सुहेल अमीर न्यासी कमरा अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि केस का रिकॉर्ड हाई कोर्ट है, केस के रिकॉर्ड के बगैर दलाइल कैसे दे सकते हैं। अदालत तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड पेश करने के लिए पाबंद करे। अदालत ने सरकारी वकील को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मेडिकल किताबों के सफ़ों में आइस जज्ब करके बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश। ANF ने किताबों की आड़ में 13 किलोग्राम आइस बैरून मुल्क स्मगल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई माल रोड पर वाक़े कॉरियर ऑफिस में की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक खुफिया इतला पर ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले एक पार्सल को कब्जे में लेकर चेक किया गया। दौरान चेकिंग पार्सल में मौजूद किताबों के औराक में जज्ब मंशियात का इंकशाफ हुआ। ANF अमले ने मंशियात टेस्टिंग डिवाइस की मदद से किताबों में जज्ब आइस की तस्दीक की। पार्सल पेशावर के रहायशी फजल रहमान नामी शख्स की जानिब से बुक करवाया गया था। पार्सल कब्जे में लेकर मंशियात अलहदा करने की गर्ज से लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बड़ा इक़दाम। पंजाब में बागों और सब्ज़ी को फ़रोग़ देने के लिए PH एक्ट 2025 नाफिज। पहले मरहले में 12 ज़िला में हॉर्टिकल्चर एजेंसियाँ कायम की जाएंगी। शहरों को सरसब्ज़ बनाने के लिए ज़िलाई सतह पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब को बागों का सूबा बनाने का मंसूबा शुरू। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में सूबे के 12 ज़िला में हॉर्टिकल्चर एजेंसियाँ कायम की जाएंगी। मौजूदा
मौजूदा तमाम ज़िलाई हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ को एजेंसियों में तब्दील कर दिया जाएगा। इस ज़िमन में मुंतखब अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें भी कायम कर दी गई हैं ताकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुतलका अमला और वसाइल 15 अक्टूबर से पहले PHA के हवाले किए जा सकें। अहम इजलास सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें नई तश्कील करदा हॉर्टिकल्चर एजेंसियों के ढांचे पर मुशावरत की गई। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक नई एजेंसियों के अफसरान का इंतखाब सर्च कमेटी करेगी। सूबाई सतह पर PHA के दायराकार में इजाफे से शहरों में सब्जे और हरियाली को फरोग मिलेगा। महकमा हाउसिंग के मुताबिक सूबे में ग्रीन एरियाज बढ़ाने से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने में भी सहूलत होगी। पहले मरहले में मुंतखब करदा अजला में शेखपुरा, उकाड़ा, गुजरात, जहलुम, खानेवार, ननकाना, रहीम यार खान, मरी, जंग, पाकपतन, खुशाब और मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। इन अजला में एजेंसियों के क़याम से शहरियों को सरसब्ज माहौल फराहम करने की राह हमवार होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी, मुस्तहिक खानदानों को घरों की तामीर के लिए रिकॉर्ड कर्जों की फराहमी। सिर्फ अगस्त में ही 11,000 से ज़ायद खानदानों को कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा किया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का अपना छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी की नई तारीख रकम करने लगा। प्रोग्राम ने अगस्त में कर्जों और घरों की फराहमी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में मजमूई तौर पर 20,931 खानदानों को कर्जों की फराहमी, जबकि 9,092 खानदानों को घरों की तकमील मुकम्मल करने के लिए दूसरी किस्त का इजरा किया गया। अगस्त में 3,472 नए घरों की तामीर मुकम्मल, 475.4 मिलियन रुपए के कर्जों की रिकवरी। प्रोग्राम के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 73,747 खानदानों को कर्जे फराहम किए जा चुके। अब तक 86 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे मुस्तहिक खानदानों में तकसीम। प्रोग्राम के तहत 63,851 घर जेरे तामीर हैं, जबकि 11,655 घरों की तकमील मुकम्मल। अब तक 44,552 खानदानों को घरों की तकमील मुकम्मल करने के लिए दूसरी किस्त का इजरा। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हकीकी मायनों में अवामी मंसूबा साबित हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। स्मोक से कबल फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने का मिशन इदारे माहौलियात ने इमिशन टेस्टिंग की डेडलाइन के बाद कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में 2010 से 2015 मॉडल की गाड़ियों के चालान होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। अदारा माहौलियात का एमिएशन टेस्टिंग सिस्टम फाल 31 अगस्त डेडलाइन के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक पहले मरहले में 2010 ta 2015 मॉडल गाड़ियों को वार्निंग स्लिप्स जारी की जाएंगी। वार्निंग स्लिप्स ई चलान के साथ बजरिया पोस्ट भेजी जा रही हैं। दूसरी बार स्लिप के बाद जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। स्मोक सीजन में ग्रीन स्टिकर के बगैर लाहौर में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। शहरी फौरी करीबी बूथ से अखराज टेस्ट कराएं। जल्द ही ग्रीन स्टिकर के लिए फीस मुकर्रर कर दी जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई है। प्राइवेट गाड़ियों की तादाद 17 लाख से जायद रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 50,000 से जायद बसें रजिस्टर्ड हैं। एक्साइज के रिकॉर्ड में 4,000 के करीब एम्बुलेंसेज हैं। सरकारी व्हीकल्स ने कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करना मामूल बना लिया। लाहौर पुलिस की गाड़ियां भी माहौलियाती आलूदगी फैलाने लगी हैं। माल रोड अंडरपास से गुजरने वाली गाड़ियों ने धुआं छोड़ने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुजाहिद शेख और आतिफ परवेज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अनवर अली की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इफ्तिखार ठाकुर, जवाद वसीम, राशिद महमूद, अशरफ खान समेत 24 की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। 75 साला मुमताज अदाकार अनवर अली की नमाज जनाजा लिंक रोड मॉडल टाउन की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सीनियर अदाकार जवाद वसीम ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में इफ्तिखार ठाकुर, जवाद वसीम, ताहिर अंजुम, गोशी खान, नवाज अंजुम, राशिद महमूद, अशरफ खान समेत शोबिस की अहम शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। अदाकार अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वो 3 माह मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज रहे। इन्हें इतवार के रोज हालत बिगड़ने पर रायबेंड रोड के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। अदाकार अनवर अली ने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटे को छोड़ा है। शोबिस की शख्सियात ने अदाकार अनवर अली की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इनके साथ जितना भी काम किया, जितने अच्छे फनकार उससे ज़्यादा अच्छे इंसान। और आज उनका जनाजा आपने देखा है कि कितनी दुनिया आई हुई थी। अनवर अली एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट था। उसने दुनिया भी राज़ी रखी और अपने रब को भी राज़ी रखा। ये बहुत कम लोगों में होता है। फ़न में जब आए हैं तो दुनिया ही बदल के रख दी उन्होंने। अनवर अली
उनका अबाबील सीरियल देखिए, अंधेरा उजाला में काम देखिए, जो टीवी के उनके सीरियल, उसके बाद स्टेज पे तो अंधी मचाई हुई थी। अनवर अली लिखा जाता था तो टिकटें बिकनी शुरू होती थी, ये होता सुपरस्टार। अनवर अली ने 38 साल फनी करियर में फिल्मों के अलावा टीवी और थिएटर के 1000 से ज्यादा ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें सोना चांदी, अबाबील, होम स्वीट होम और अंधेरा उजाला शामिल हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।